کابل کے بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے وقت اسٹیڈیم میں T20 کرکٹ لیگ کا میچ جاری تھا۔ دھماکے کے بعد تمام کھلاڑیوں کو ایک بنکر میں بھیج دیا گیا۔ دھماکے کے وقت بند عامر ڈریگنز اور پامیر زلمی کی ٹیموں کے درمیان لیگ میچ کھیلا جا رہا تھا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق دھماکے کے وقت اقوام متحدہ کے عہدیداران بھی اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل کابل میں واقع ایک گردوارے کے دروازے پر بھی دھماکہ ہوا تھا جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں پرامن احتجاج کر رہے فلسطینیوں پر ایک بار پھر اسرائیلی پولیس نے فائرنگ کی جس میں ایک 16 برس کے فلسطینی نوجوان کی موت ہو گئی۔ We were in a peaceful non-violent demonstration against the illegal settlement here in Al Mughayyir. The Israeli army and the Israeli settlers together started shooting live ammunition at us, and many people were injured. Many were seriously injured with live ammunition from the settlers and the army together. سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں محرم الحرام 1444 ہجری کا پہلا دن 30 جولائی بروز سنیچر کو ہوگا۔ اس موقع پر غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب بھی منعقد ہوگی۔ سعودی عرب میں جمعرات کو چاند نظر نہیں آیا تھا۔ اس طرح ذی الحج کے 30 روز مکمل ہونے کے بعد 30 جولائی کو محرم کا پہلا دن ہوگا۔ رواں سال سعودی حکام نے غلاف کعبہ کی تبدیلی یکم محرم الحرام یعنی نئے اسلامی سال کے آغاز پر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ غلاف کعبہ کو ذی الحج کی 9 تاریخ کو تبدیل کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس سال ماضی کی روایت سے ہٹ کر غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب ہفتے کو نئے اسلامی سال کے پہلے دن منعقد ہوگی۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور یہ تقریب ہر سال منعقد ہوتی ہے۔ امریکہ اور چین کے صدور نے 2 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی ویڈیو کال کے دوران تائیوان کے مسئلے پر ایک دوسرے کو متنبع کیا۔ چینی صدر نے اپنے امریکی ہم منصب سے کہا کہ جو آگ سے کھیلتا ہے وہ راکھ ہو جاتا ہے۔ حال ہی میں جب یہ خبر آئی کہ امریکی کانگریس کی اسپیکر نینسی پیلوسی تائیوان کا دورہ کرنے والی ہے تو چین نے اس پر سخت رد عمل کیا تھا۔ دیکھیے رپورٹ۔ تائیوان کو لے کر چین اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ جمعرات کو چینی صدر شی جن پنگ نے کھلے عام امریکی صدر جو بائیڈن کو دھمکی دی۔ شی جن پنگ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو آگ سے کھیلے گا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس طرح چین نے تائیوان کو لے کر اپنا رخ بھی واضح کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ نے جمعرات کو 2 گھنٹے طویل فون پر بات چیت کی تھی۔ اس گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو تائیوان کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ امریکہ اور چین کے رشتے پہلے ہی تلخی کا شکار ہیں۔ 2 گھنٹے سے زیادہ ویڈیو کال۔ صدر بائیڈن نے 8:33 پر شی جن پنگ کو ویڈیو کال کیا تھا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ بات چیت کے بعد ویڈیو کال تقریباً 10:50 پر ختم ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان کئی معاشی اور متنازع امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ تاہم اس بات چیت کا مرکزی موضوع تائیوان کا تنازع تھا۔ چینی صدر نے کہا کہ چین تائیوان کی آزادی کے ساتھ بیرونی مداخلت کا سخت مخالف ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور دیگر اعلیٰ امریکی حکام بھی اس فون کال میں شامل تھے۔ ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو براہ راست اور ایماندارانہ تھی۔ چین کے سرکاری میڈیا نے اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا کہ صدر شی جن پنگ نے جو بائیڈن کو تائیوان کے مسئلے پر آگ سے کھیلنے کے خلاف خبردار کیا اور انہیں بتا دیا ہے کہ امریکہ کو متحدہ چین کے اصول پر عمل کرنا چاہیے۔ 习近平主席在通话中重点就中方在台湾问题上的原则立场进行了阐述。中方反对美台交往的立场是明确。 بات چیت کے بعد وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ
सदर बाइडन ताइवान के बारे में अमेरिका की देरीना पॉलिसी के पाबंद हैं और वो ऐसी किसी भी कोशिश के सख्त मुखालिफ हैं जिससे ताइवान और चीन के दरमियान अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचने का खतरा हो। They wanted to make sure that they continued the dialogues, kept the open lines for conversation, and that's what we saw today. Again, it was more than a 2-hour call, but I'll share a little bit of what they covered. The first was a detailed discussion of areas where the two countries can work together, with particular focus on climate change and health security and counter narcotics. The two teams will be following up on these areas. President Biden also raised the need to resolve the cases of American citizens who are wrongfully detained. व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक उन्होंने चीन से कहा है कि ताइवान के हवाले से अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। इस बातचीत के बाद ताइवान की वजारत खारजा ने अपने एक बयान में अमेरिका की हिमायत के लिए बाइडन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अमेरिका के साथ सिक्योरिटी से मुतालिक अपनी शराकतदारी को मजीद मजबूत करता रहेगा। चीन और ताइवान का तनाजा दहाइयों पुराना है। चीन का कहना है कि ताइवान को अपने मुल्क के साथ एक दिन मुकम्मल तौर पर जम करके रहेगा। यूक्रेन पर रूस के हालिया हमले की रोशनी में चीन की जानिब से ऐसे खतरात और खदशात बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में जब यह खबर आई कि अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर ताइवान का दौरा करने वाली हैं, तो चीन ने इस पर सख्त रद्द अमल किया था। चीन ने नैन्सी पेलोसी को खबरदार करते हुए कहा था कि अगर उन्होंने जजीरे का दौरा किया तो इसके संगीन नतायज बरामद होंगे। रवां बरस जब अमेरिकी कांग्रेस के एक वफ्द ने ताइवान का दौरा किया था, तो उस वक्त चीनी वजीर दिफा ने भी अपने सख्त रद्द अमल में यही कहा था कि जो आग से खेलता है वो जल जाता है। ताहम फर्क इतना है कि इस बार यह बात खुद चीनी सदर ने जो बाइडन से बराह रास्त कही है। हालांकि बाइडन ने शी जिनपिंग को बताया कि अमेरिका ताइवान की पोजीशन तब्दील करने के किसी भी यकतरफा इक़दाम की सख्ती से मुखालफत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। बेहदर है जिनके सीनों में, वो कहाँ कब किसी से डरते। शेरे खुदा है कौन, निसारे नबी है कौन, नहजुल बलागा पढ़िए समझिए अली है कौन। दुरूद पढ़ती रहेगी ज़बा मोहम्मद पर और सलाम लिखता रहेगा कलम हुसैन के नाम। बाबुल इल्म दहली में हुसैन डे पर मुनाक़दा शानदार मुसालमा देखिए बरोज शनिचर रात 9:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगरचे अफगानिस्तान में अमेरिका की जानिब से शुरू की गई 20 साला जंग गुज़िश्ता साल खत्म हो गई, लेकिन अफगान शहरी अब भी जंग के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं और अनमिट दर्द का शिकार हैं। देखिए रिपोर्ट। अगरचे अफगानिस्तान में अमेरिका की जानिब से शुरू की गई 20 साला जंग गुज़िश्ता साल खत्म हो गई, लेकिन अफगान शहरी अब भी जंग के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं और अनमिट दर्द का शिकार हैं। गुल 7 माजूर बच्चों के दादा हैं। वो साल 2018 में रॉकेट के गोले के नतीजे में माजूर हो गए थे। ननगरहार में रहने वाले इस खानदान ने अपने 3 मासूम बच्चे खो दिए, जबकि जिंदा बच जाने वाले बच्चों ने अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया। زمونږ په ملک کې امریکایانو ژوند وکړو، مونږ یې در بدر کړو، د مونږ خاوره یې خرابه کړه، خلک هم شهیدان شو، مړه شو. امریکایانو مونږ د ویرو په پیدام نه ده کړې. 80 साल के गुल का कहना है कि वो शदीद माली दबाव के बोझ तले दबे हुए हैं। खेती बाड़ी से हासिल होने वाली मामूली आमदनी पर अपना गुजारा कर रहे हैं। उनका मानना है कि मगरबी ममालिक की फौजियों की तवील मुद्दती मौजूदगी ने अफगानिस्तान में अमन के बजाय तनाजात को जन्म दिया। उनका कहना है कि अमेरिका ने उनके वतन को तबाह किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। नतीजतन खाने और कमाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अफगानी मानते हैं कि अमेरिका ने मुल्क में तामीर के बजाय तबाही में ज्यादा किरदार अदा किया। معذب دیده، مهاجر شده، به خانه و به کاشانه شده، به زندانها انداخته شده و دیگر مسائل زیادی را متحمل و متقبل شده. او مسائلی است که بعد از اشغال صورت گرفته. یک چیزی است که اشغال صورت گرفته و بعد زیر اشغال همچون جنایت انجام شده. ब्राउन यूनिवर्सिटी के कास्टर्स ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के मुताबिक 2001 से जंग में 1,70,000 से ज्यादा अफगान मारे गए। अगरचे अमेरिका की क़यादत में इत्तेहादी अफवाज ने गुज़िश्ता साल अफगानिस्तान से इनखला किया था, लेकिन जंगज़दा मुल्क में बड़ी तादाद में न फटने वाले हथियार हर रोज लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने इल्जाम लगाया कि गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान संगीन जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रूस और यूक्रेन ने जुमे को एक दूसरे पर मशरक़ी यूक्रेन के अलहदगी पसंद इलाके में एक जेल पर गोलाबारी का इल्जाम लगाया और इस हमले में मुबैना तौर पर दर्जनों यूक्रेन के फौजी कैदी हलाक हुए हैं, जिन्हें मई में रूस ने जनूबी बंदरगाही शहर पर कब्जा करने के बाद गिरफ्त में ले लिया था। इस हमले में 53 यूक्रेनी कैदी हलाक और 75 जख्मी हुए हैं। रूस ने कहा कि यूक्रेन की फौज ने जेल पर हमला करने के लिए अमरीकी फराहम करदा मल्टी रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल किया है। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने इस हमले को एक खूनी इश्तार अंगेज करार दिया है, जिसका मकसद यूक्रेनी फौजियों को हथियार डालने की हौसला शिकनी करना था। दूसरी तरफ यूक्रेनी फौज ने एक बयान में किसी रॉकेट या तोपखाने से हमला करने की तरदीद की है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने
चर्नोमोर्स्क बंदरगाह का दौरा करके तरसील की तैयारियों का जायजा लिया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम अनाज की तरसील के लिए तैयार हैं। यूक्रेन तरसील शुरू करने के लिए तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा के इशारे का मुंतज़िर है। बाजरे की बहरिया अस्वद से अनाज की महफूज तरसील के लिए 22 जुलाई को इस्तांबुल के सदारती दफ्तर में सदर रजब तैयब एर्दोगान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की मौजूदगी में यूक्रेन और रूस के साथ इस्तांबुल अनाज समझौता तय किया गया था। अनाज की महफूज तरसील के लिए कायम किए गए मुश्तरका कोऑर्डिनेशन मरकज ने भी 27 जुलाई को इस्तांबुल कौमी दिफाई यूनिवर्सिटी के कैंपस में कार्रवाइयों का आगाज कर दिया था। Перший корабель завантажується з часів початку війни. Це турецьке судно. Я стою на фоні цього судна. Це говорить про те, що порт почав працювати. Найголовніше для нас – порт працює, люди працюють. Ви бачите, що багато людей. Всі, скажу відверто, щасливі, що всі вийшли на роботу, всі мають роботу і що процес пішов. रूस और यूक्रेन के बीच जंग 5वें महीने में दाखिल हो गई है। जंग में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के कई शहर तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने रूसी बर्बरियत को उजागर करने और अपने मुल्क की मदद के लिए आलमी सतह पर हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। ज़ेलेंस्की ने आलमी बरादरी की तवज्जो रूस की जारहियत से हटने नहीं दी, लेकिन हाल ही में उनके एक कदम के लिए न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया में तनकीदें हो रही हैं। ज़ेलेंस्की की इस हरकत पर कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और कुछ हैरान हैं। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन जंग की आग में झुलस रहा है। 5 महीने से जारी जंग में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के कई शहर तबाह बर्बाद हैं। जंग के दौरान यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की अपने मुल्क के अवाम के साथ मजबूती से खड़े नजर आए। ज़ेलेंस्की ने रूसी बर्बरियत को उजागर करने और अपने मुल्क की मदद के लिए आलमी सतह पर हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। कभी वो यूरोपीय यूनियन के ममालिक से खिताब करते नजर आए तो कभी फिल्म फेस्टिवल में दिखाई दिए। गर्ज उन्होंने हर मौके पर अपने मुल्क और जंग झेलती अवाम के दर्द को दुनिया के सामने रखा। हालांकि पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन जंग से बखूबी वाकिफ है, बावजूद इसके ज़ेलेंस्की ने आलमी बिरादरी की तवज्जो रूस की जारहियत से हटने नहीं दिया। लेकिन हाल ही में उनके एक कदम के लिए न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया में तनकीदें हो रही हैं। ज़ेलेंस्की की इस हरकत पर कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और कुछ लोग हैरान हैं। यूक्रेन की खातून अव्वल ओलिना ज़ेलेंस्का और उनके शौहर सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से फैशन मैगजीन वोग के लिए कराए गए फोटोशूट पर लोगों ने दोनों को आड़े हाथों लिया। ओलिना ज़ेलेंस्का और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के फोटोशूट की तस्वीर वोग मैगजीन ने 3 दिन कबल 26 जुलाई को जारी की थी, जो कि मैगजीन के अक्टूबर के शुमारे में शामिल होंगी। यूक्रेनी सदर और उनकी अहलिया की तस्वीर अक्टूबर 2022 के मैगजीन की सरे वरक की जीनत बनेंगी। मैगजीन ने यूक्रेन की खातून अव्वल की तस्वीर को मैगजीन के ऑनलाइन एडिशन का सरे वरक बनाते हुए उसे बहादुरी करार दिया। इंटरव्यू के लिए कराए गए फोटोशूट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो यूक्रेनी शहरियों ने सदर और खातून अव्वल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शहरियों का कहना है कि उनका मुल्क जंग में तबाह हो रहा है और वो फोटो शूट कराने में मसरूफ हैं। दुनिया भर के लोगों ने तनकीद का निशाना बनाते हुए उन पर इल्जाम लगाया कि वो जंग को रोमानवी दिखाना चाहते हैं और उनके लिए जंग कोई मसला नहीं है। फैशन मैगजीन के लिए कराए गए फोटोशूट की एक तस्वीर में खातून अव्वल को फौजियों के दरमियान भी फैशनेबल लिबास में खड़ा हुआ दिखाया गया है, जबकि एक तस्वीर में उन्हें शौहर सदर ज़ेलेंस्की के हमराह रोमानवी अंदाज में दिखाया गया। दोनों की तस्वीर देखने के बाद लोगों ने उन पर तनकीद की और लिखा कि उनका मुल्क जंग में तबाह हो रहा है और वो फोटो शूट कराने में मसरूफ हैं। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि एक तरफ यूक्रेन के लोग जिंदगी बचाने के लिए मुल्क से फरार हो रहे हैं, वहाँ यौमिया हजारों फौजी मारे जा रहे हैं और सदर को खातून अव्वल के हमराह फोटोशूट करवाने से फुर्सत नहीं है। बाज लोगों ने लिखा कि पुतिन जंग के लिए मिसाइल तैयार कर रहे होंगे और यूक्रेनी सदर फोटोशूट करवा रहे हैं। कुछ लोगों ने सदर और खातून अव्वल के फोटोशूट पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए उन्हें मुल्क के परचम और जंग में मारे जाने वाले अफराद का ख्याल रखने का एहसास दिलाने की कोशिश की।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में एक होटल में आतिशबाजी से 8 अफराद की मौत के मुंह में चले गए। रूसी वजारत बराए हंगामी हालात की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि मॉस्को के जनूब मशरक़ी इलाके में वाक़े एक होटल में आग भड़क उठी थी। हुकाम के मुताबिक इस हादसे में 8 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे और 4 जख्मियों को अस्पताल में ज़ेर इलाज ले लिया गया। बताया गया है कि इस होटल में अलार्म सिस्टम नस्ब किया था लेकिन खराब था। अमरीकी रियासत केंटकी में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में दर्जनों अफराद हलाक हो गए। केंटकी के गवर्नर ने शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस रियासत में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। यहाँ रियासत के शाहराहें तालाब बनी हुई हैं। नॉर्थ काउंटी का मरकजी इलाका सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। मुतासर इलाकों में गाड़ियां, घर और इमारतें कई फुट पानी में डूबी हुई हैं और हजारों अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। दूसरी जानब महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशेंगोई भी की है। ईरान में इंसानी हकूक के एक ग्रुप के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता हफ्ते 32 अफराद की मौत की सज़ा सुनाई गई है। उनमें से 3 ख़वातीन को बुध को सज़ाए मौत सुनाई गई, जिनमें एक खातून की कम उम्री में शादी हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि ईरान में इस साल बड़े पैमाने पर सज़ाए मौत दी गई है और इस साल अब तक सज़ाए मौत पाने वालों की तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दुगनी हो गई है। इंसानी हकूक की तंजीमों का कहना है कि ईरान में दीगर ममालिक के मुकाबले ख़वातीन को ज़्यादा सज़ाएं दी जाती हैं। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि शुमाली कोरिया जल्द ही जौहरी तजुर्बा कर सकता है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग ने कहा कि उनका मुल्क एटमी जंग के लिए तैयारी कर रहा है। वहीं किम जोंग उन ने एक बार फिर अमेरिका को खबरदार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ किसी भी फौजी तनाज़े के लिए तैयार है। देखिए रिपोर्ट। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने धमकी दी है कि वो अमेरिका के साथ किसी मुमकिना जंग की सूरत में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। किम जोंग उन ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया अपना जौहरी डेटरेंस इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। कोरियाई जंग की सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ किसी भी फौजी तनाज़े का सामना कर सकता है। किम जोंग उन का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शुमाली कोरिया अपना 7वां जौहरी तजुर्बा कर सकता है। अमेरिका ने गुज़िश्ता माह खबरदार किया था कि शुमाली कोरिया किसी भी वक्त जौहरी तजुर्बा कर सकता है। शुमाली कोरिया ने अपना आखिरी जौहरी तजुर्बा 2017 में किया था। ताहम जजीरा नुमा कोरिया में कशीदगी की फजा अब बढ़ रही है। शुमाली कोरिया के खसूसी अमरीकी नुमाइंदे सुंग किम ने कहा कि प्योंगयांग ने इस साल गैर मामूली तादाद में मीज़ाइल तजुर्बात किए हैं। साल 2019 में शुमाली कोरिया ने 25 बार मीज़ाइल टेस्ट किए थे, जबकि इस साल अब तक 31 तजुर्बात किए हैं। जून में जनूबी कोरिया ने जवाबी रद्द अमल में अपने 8 मीज़ाइलों का तजुर्बा किया था। अगरचे 1950 से 53 के दौरान कोरिया की जंग मुआहदे के साथ खत्म हो गई थी, लेकिन शुमाली कोरिया इस जंग में अमेरिका के खिलाफ अपनी फतह का दावा करता है। अभी हाल ही में शुमाली कोरिया अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान मुश्तरका फौजी मशकों से नाराज हुआ था। शुमाली कोरिया ने खबरदार किया था कि अगर मुश्तरका फौजी मशकें बंद न की गई तो जनूबी कोरिया को गैर मुतवक्का चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। अहम बात यह है कि शुमाली कोरिया की जौहरी तजुर्बे की खबर के बाद अमेरिका ने भी खबरदार किया था कि अगर शुमाली कोरिया ने जौहरी तजुर्बा किया तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।